Okay. We're into manufacturing of vacuum pumps for chemical and pharmaceutical sector. That's our core line of business. And now we are expanding into other segment areas also. These are basically industrial vacuum pumps and systems. All medicines, probably tablet medicines that you have, probability, if you're consuming it in India, probability that it's gotten manufactured on our vacuum pump is about 80%. So yes, that's our core line. And starting from the beginning, I did my BMP program in June of 2019. I started with that program. We were supposed to finish in March, but then COVID happened and it took some time to figure out how things will happen, and it got delayed by another couple of months. When that program finished, तो एकदम से ऐसा लगता था कि वैक्यूम हो गया है. सर को हर हफ्ते देखने की इतनी आदत हो गई थी that we started missing him. Next year, April was the first ASP batch that came. Actually, one ASP I think happened before this, but ours was amongst the first this structure ASP that I would call. And I joined that program, which finished in October last year. And I would say it was probably one of the best things that I did after completing BMP, क्योंकि systems काफी हद तक हमारे लग चुके थे, everything, especially because we finished as soon as COVID started. We had a lot of spare time to implement a lot of systems properly. We got done with that part of it, and we were ready for the next big push. And ASP was that big push that happened for me. Along with ASP, I also started with digital marketing, and probably during this conversation, I'll cover a little part of that as well. तो सबसे पहले अगर सर मैं रिजल्ट से शुरू करूं, our bottom line grew by almost 400% in this whole tenure. Before ASP and after ASP. Yes, sir. Wow. So, like you say, percentage growth in profit. तो वो एक चीज अटक गई थी हमेशा. Every time, whenever I am sitting, I am just thinking how we can focus on growth and how we can focus. I think probably for me, the thing that helped me most from your ASP program was the strategy part of it. Sales may we have all sales all over India. We have regional offices, and then we have local, every state having its own sales engineers. Before ASP, हमारे पास document control centrally कभी भी available नहीं रहता था. We always used to depend upon our people or regional offices. After ASP, सबसे पहली चीज जो हमने करी, क्योंकि जब आपने numbers मांगे तो ये realize हुआ कि वो numbers तो available ही नहीं है हमारे पास. We could not fill up most of the sheets. तो सबसे पहले हमने फिर एक सेंट्रल सेल्स में DME लगा के, MDO बना के, वहां पे हमने सारा डेटा कंट्रोल और क्रिएट करना शुरू किया, और उस डिपार्टमेंट को हमने इनसाइड सेल्स कहना शुरू कर दिया. तो आपने हिंदी एंड इंग्लिश बोल दिया. हिंदी ज्यादा अच्छा है. आपने अपने सेल्स के लिए एक अलग पूरा का पूरा MDO सेटअप किया, इंक्लूडिंग MIS और DME का लड़का. यस सर. उसको आपने अलग से सेग्रीगेट कर दिया. यस. वो करना पड़ा क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं था वो अवेलेबल, और जब हम रीजनल टीम से भी मांगने गए तो रियलाइज किया कि वो भी नहीं मेंटेन कर रहे. मतलब इट्स ऑल हैपनिंग, देयर इज नो सिस्टम. वो एक बहुत बड़ा गैप दिखा. तो हालांकि आपने पूरा BMP कर लिया और आप ना सिस्टम ओरिएंटेड पर्सन हो, और आपने पूरे BMP का सब कुछ करा के सेट कर लिया, फिर भी आपके पास डेटा डूटा कुछ नहीं था. यस, क्योंकि BMP के वक्त ज्यादा फोकस ऑपरेशंस पे किया,
ये डेटा नहीं था तब, और फ्रेंकली इस पे तब दिमाग भी नहीं लगाया था बहुत ज्यादा। जब एएसपी पे आए तो ये समझ आया कि ये डेटा की अहमियत क्या है, एंड व्हाई दिस डेटा बिकम्स इम्पोर्टेंट व्हाइल टेकिंग स्ट्रेटेजिक कॉल्स। तो ये रियलाइज किया कि ये कैप्चर करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड टुडे प्रोबेबली आई वुड डेटा बी वेरी, डेटा की अहमियत क्या है? sir, any decision that you are taking, if you are taking without data, you have, matlab, when data comes in front of you, the whole perspective changes. इतनी बार होता है कि हम डेटा के बिना कुछ बात किसी की सुन रहे होते हैं और वो पता चलता है वो अपना एजेंडा बस पुश कर रहे हैं, बिकॉज जब डेटा सामने आता है तो डेटा कुछ और कह रहा होता है और आदमी कुछ और कह रहा होता है। So what you're saying is data is many times different from perception. Yes, maximum times, 95% of the times, we may feel something, but when we see the data, we the whole thought changes because data is speaking something else. Very nice. So this was the inside sales. Today I have about 6 to 7 people working dedicatedly inside in inside sales, and their core focus is to support people who are on the front line. अच्छा, इसमें फिर एक और चीज हमें समझ आई, जैसे आप हमेशा समझाती हैं, सेल्स और सेल्स ऑपरेशंस। सेल्स ऑपरेशंस कैसे अलग होना चाहिए, झाड़ू पोछा, मतलब the language that you use in everything. So that was something that we were not earlier doing, and now in fact we have only two category of people in our company. One is doers and one is problem solvers. And my problem solvers have standing instructions here. 50%, 50 to 60% of the time you have to be free, and you only need to be thinking about growth, nothing else. ये क्या डिफरेंशिएशन है, उनका क्या रोल डेफिनेशन है For problem solvers, प्रॉब्लम सॉल्वर और डूअर के बीच में? sir, basically problem solver is like जैसे HOD होता था पहले, हम HOD कहते थे तो वो अलग उसका कल्चर या सोच या थॉट अलग रहता था। जैसे ही उसको प्रॉब्लम सॉल्वर के कंसेप्ट में लाए, इसका मतलब आज कोई सिस्टम बनाना है तो उस प्रॉब्लम सॉल्वर ने सिस्टम बनाना है। अगर काम पे टाइम पूरा नहीं हो रहा, where the system is getting flawed, he's ensuring that tasks whichever fall under his purview are getting completed. ओनरशिप में, अकाउंटेबिलिटी में, सोच में पहले क्या होता था, कभी भी वो प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मेरे पास आ जाती थी सीधा। आज प्रोबेबली मेरे पास प्रॉब्लम ना के बराबर आती है। सेल्स में स्टॉप गेटिंग हेल्प टिकट, सेल्स में भी आई हैव स्टॉप गेटिंग हेल्प टिकट, आई हैव स्टॉप। ओके, आई विल कम टू माय नंबर सर, नहीं तो वो मैंने बाद में लिखा हुआ है कि मैं सेल्स में कैसे कर रहा हूँ। आई विल कम टू दैट। सेल्स में सर मैं ना पहले आई यूज टू स्पेंड 60 to 70% of my time meeting people, conversing with people. Today I meet people, I talk to my customers, but that is purely out of choice. I don't do it for sales. I only do it for better strategies of tomorrow. मैं इम्प्रूव क्या कर सकता हूं कल, मेरा बस मकसद कस्टमर से बात करने का ये होता है कि कस्टमर मेरे को आइडियाज दे दे जिससे मैं इंप्रूवमेंट्स ला सकूं। आई एम नॉट क्लोजिंग एनी सेल्स, आई एम नॉट नेगोशिएटिंग इवन फॉर अ सिंगल ऑर्डर। वी हैव टोटली स्टॉप दैट। मूविंग फॉरवर्ड, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ, आप पहले आपका क्या रोल होता था? पहले आप क्लाइंटों से बात करके क्लोज करते? बिल्कुल सर, पहले क्लाइंट फोन कर दे, सारी नेगोशिएशन ही हम करते थे, स्टार्टिंग से एंड तक उसको समझाना, उससे बात करना, उससे प्राइसेस समझना, सब कुछ हम करते थे, मतलब टॉप टू एंड द होल सेल साइकिल। अगर कोई हैदराबाद से फोन आ गया कि सर ये कल ऑर्डर फाइनल करना चाहती हैं, अच्छा ठीक है रुको, रात को टिकट बुक कराई, सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके जा रहे हो, वहां बैठ के कस्टमर के साथ नेगोशिएट कर रहे हो, दैट होल थिंग है इसका, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती थी, चीजें ही नहीं पता होती थी। आज की तारीख में क्या हुआ है,
नाउ इफ यू से कि मेरे को आज पता है मेरे कितने ऑर्डर्स किस स्टेज ऑफ द फनल में खड़े हैं और उधर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं. सो टुडे माय पीपल आर नॉट चेजिंग मी, रादर इट इज द अदर वे अराउंड. जिस दिन हमारी एमआईएस होती है उस दिन मतलब सेल्स की ईएम होती है, उस दिन लोगों को हम समझा रहे होते हैं कि यार आपका ये ऑर्डर इस स्टेज पे इतने दिनों से खड़ा हुआ है, यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है. ऐसे ही पिछले एक ऑर्डर में हुआ था जहां इस कारण की वजह से ये ऑर्डर लूज हुआ था, तो ये ध्यान रखना है. वी हैव स्टॉप्ड नेगोशिएटिंग, वी हैव स्टॉप्ड रिड्यूसिंग आवर प्राइसेस, गिविंग डिस्काउंट्स. देते थे पहले, नेगोशिएट करके डिस्काउंट देते थे, क्रेडिट देते थे, क्योंकि आपके तो बड़े बड़े लोग हैं, ओईएम लोग हैं जिनको आप सप्लाई करते हो, उनकी बड़ी नेगोशिएट. लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY21-22 हमारा एबिटा पिछले साल के मुकाबले, एबिटा पिछले साल के मुकाबले 9% बढ़ा है. 9% एब्सोल्यूट टर्म्स में. मतलब अगर मेरा पहले एबिटा 21% होता था तो अब मेरा एबिटा 30% है. एबिटा क्या होता है सबके लिए? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट है आपका बिफोर टैक्स, बेसिकली टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट. ओके, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस हियर आई एम प्रिज्यूमिंग आर डेट फ्री और जीरो इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट का अगर आप एलिमेंट हटा दीजिए, डेप्रिसिएशन और टैक्स के सिवा जो प्रॉफिट है वो सारा एबिटा में आएगा. हाँ, तो आपका एबिटा था करीब 9%. क्या क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा एबिटा तो सर बहुत अच्छा है. आपका, सॉरी आई फॉरगॉट, आई मिसप्लेस्ड So दैट. I am saying my EBITDA in absolute terms, अगर मैं 100 रुपए का माल बेचता हूँ उसमें से अगर मैं पहले 21 रुपए EBITDA कमाता था तो अब मैं 30 रुपए EBITDA कमाता हूँ. ओके. So this means the discount that we are offering, we are getting better payment terms, we are getting better prices, we are delivering faster. So net resultant, net to net output is that we are earning almost 50% more just by improving our operations, just by implementing these systems, both BMP and ESP. ओके, मतलब आप कह रहे हो आपका प्रॉफिट मार्जिन हैज गॉन अप बाय 50%. मार्जिन्स हैव गॉन अप 50%. Margins have gone up by 50%. वेरी गुड. सो मार्जिन्स हैव गॉन अप बाय 50%. Yes. वाओ. हाँ जी, और आप कह रहे थे? सर इसमें जो हमारे को बेनिफिट मिला वो क्या मिला, हमने जब आपने जैसे हमें स्टेजेस बताई अलग अलग कन्वर्जन की, तो एक मिनट, तो जस्ट 1 सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू. पहले का जो आपका कॉन्वर्सेशन था, आप कह रहे थे कि पहले आप डिस्काउंट और क्रेडिट ऑफर करते थे. यस. और अब आपने डिस्काउंट और क्रेडिट ऑफर करना बंद कर दिया. बिल्कुल. और कस्टमर से मिलना भी बंद कर दिया. कस्टमर से मिलना भी बंद कर दिया. तो आपने डिस्काउंट, I meet customers but purely out of choice for strategy. मतलब जैसे I'll go to meet a customer who's like a big owner of a big pharma company just to understand what is the trend. वो एक अलग बात. Markets are moving. हाँ, पहले आप कह रहे हो कि आपको हर सेल पे, मतलब जैसे क्लाइंट का फोन आता था, प्लेन पकड़ते थे और भाग जाते थे उसके पास मिलने भाई, और बैठ के पूरी सेल क्लोज कर रहे होते थे. और उस पे भी आपका, मतलब उस पे भी क्रेडिट देना पड़ता था, डिस्काउंट देना पड़ता था. अब आपके सेल्स के लड़के क्लोज कर रहे हैं सारा. अब कौन कर रहा है अब सारा सेल? Yes, sales team. अब टीम क्लोज करती है सब कुछ. Yes sir. आपको घुसने की जरूरत नहीं है. नहीं घुसने की जरूरत है. और उसके बावजूद भी 400% प्रॉफिट बढ़ गया. Yes sir. वाओ. हाँ जी, और बताइए, और क्या शेयर कर रहे थे? हमने जैसे आपने सर सिस्टम्स में अपने शीट्स में डेटा का, हमने स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा गूगल शीट्स पे चलाया पहले, but then we shifted over to Zoho CRM. काफी हमें उससे क्लैरिटी मिली. We were able to map everything onto it. We've created 4 verticals within the organization. सबसे पहला है हमारा CRR OTP. दूसरा है जैसे आप कहते हैं उसको NBT CRR, हमने उसका नाम CRR अपसेल रखा हुआ है. बेसिकली existing customers, how we can upsell or create more opportunities with them. Third is NBD incoming, and fourth is NBD outgoing.
नाउ क्योंकि हमने इनसाइड सेल्स की टीम्स बना ली थी और सीआरआर ओटीपी भी हमने ऑफिस जॉब बना दिया था। आपने पूरा ऑफिस जॉब बना दिया? यस, सीआरआर ओटीपी इज 100% ऑफिस जॉब। आपका तो बड़े बड़े क्लाइंट हैं, उन तो बड़े हाँ भाव हाँ, हैं। सब 39% ऑफ माई टोटल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सीआरआर ओटीपी विच इज अ प्योर ऑफिस जॉब। 39, ओके 39 पे आता हूँ। आप कह रहे हो मगर आपके क्लाइंट तो बड़े बड़े क्लाइंट है ना, यस सर, तो वो तो बहुत भाव दे खाते आर हैं। हैप्पियर, दे आर हैप्पियर। रिपीट ऑर्डर सारे लोग, जब तक स्पेसिफिकेशन मतलब कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, इफ दे आर रिपीट ऑर्डर्स, वी आर ऑल बुकिंग देम ऑन, वी स्टॉप्ड सेंडिंग पीपल ओनली फॉर रिपीट। उससे मेरे को बेनिफिट क्या हुआ है सर, मैं आपको वो बताता हूँ। पहले हमें आपके लोग जाते थे? बिल्कुल वही टाइम पास वही होते थे सारे दिन सर, पूरा बिजनेस ही वहीं से आता था। उससे उसको बंद करने की वजह से हमारी एनबीडी 12% पे थी। वी वर एबल टू टेक आवर एनबीडी आउट गोइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकमिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एनबीडी आउट गोइंग, वी वर एबल टू टेक फ्रॉम 12% टू 38% ऑफ माई टोटल रेवेन्यू। 12% to 38% NBD outgoing went up. यस सर, and outgoing I consider only those where I choose the customer. The customer doesn't choose me. If my customer is sending me an inquiry, we mark it in NBD ingoing. इसका मतलब हम पहले डिसाइड करते हैं कि ये हमारा गोल्डन कस्टमर बन सकता है और हम उसको चूज करते हैं। सो वी कॉल इट सेल्स बाय चॉइस। आप चूज कर रहे हो, यस सर। ऐसा नहीं है कि जो बंदा डेटाबेस में जहां मिल जाए उसको बोलो चल भाई ऑर्डर दे। हम बताते हैं कि यहाँ पे ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट आ रहा है इस कंपनी का, या हम घुसना चाहते हैं या इसका ऑर्डर हम लेना चाहते हैं। सो देन माय सेल्स पीपल फोकस ऑन दैट, दैट इज एनबीडी आउटगोइंग फॉर अस। तो आपका सारा ही एनबीडी आउटगोइंग आउट ऑफ चॉइस है? यस सर, गोल्डन सर्कल है। बस उसको ही बेचते और किसी को नहीं बेचते? हाँ, उसी को ही बेचते हैं। तो 38%, जो मेरा 12% था, वो मेरा 38% है आज। तो वो 3x ग्रो कर गया यस सर, एनबीडी। क्योंकि हमारी सारी फील्ड की सेल्स टीम, वी हैड अबाउट 17-18 पीपल इन फील्ड सेल्स, सबको हमने सीआरआर ओटीपी पे से हटा के यही समझाया कि तुम्हें इसी पे ही फोकस करना है और कहीं ध्यान नहीं देना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उनको सबको सीआरआर ओटीपी से हटा के एनबीडी में डाल दिया? यस सर। वेरी गुड। ओके, वी एब्जॉर्ब सम इन सीआरआर ओटीपी, ऐसा नहीं सबको डाल दिया, बट द गुड वंस, मतलब जो 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 पीपल हुम वी फेल्ट हैड कैलिबर, ओके। उसमें डिस्क प्रोफाइल और बड़ी सारी चीजें देखी थी हमने, उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्या कर सकते हैं वो, एंड देन वी प्रमोटेड सम आल्सो विद इन दोस। ओके, वेरी नाइस। मतलब उस जॉब को बेसिकली ग्लोरीफाई करना। ओके, हाँ जी। और अच्छा सर, इसमें एक और बात क्या है, जैसे बहुत बार लोग कहते हैं, मतलब आई फील वेरी प्राउड व्हेन आई से दिस, many a times what happens, NBD outgoing is 38% of not orders that I book, it is 38% of the revenue that I get. हमेशा NBD आउटगोइंग में ऑर्डर्स स्टार्टिंग में छोटे से शुरू होते हैं, and then the customers keep expanding their volume of business with you. But the quantum of business that we are doing with these people is the number of transactions is so good that this is almost now equivalent to what my CRR OTP is. वाओ, अब सबको समझ में आया? ये बात नहीं समझ में आया? जब पहला ऑर्डर मिलता है वो 20 रुपए का मिलता है और थोड़ी देर बाद वही क्लाइंट 200 रुपए का बनता है। ये बात समझ में आई सबको? पहली बार में अगर आपका वही, खास तौर से जब आप B2B सेल करते हो, पहली बार में छोटे ऑर्डर मिलते हैं। यस और यस गाइस? हेलो, यस, नो गाइस, वेयर आर यू? और बाद में वो ऑर्डर बनते हैं। और अभी ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मेरा जो पहला ऑर्डर का जो वॉल्यूम है, दैट इज इक्वल टू माय CRR OTP वॉल्यूम, एग्जिस्टिंग क्लाइंट सेल्स वॉल्यूम। वो बढ़ गया इतना। Awesome. मतलब
अगर हम वो ना कर रहे होते शायद, तो शायद हम उतनी ग्रोथ लाई ना पाते, क्योंकि मार्केट नहीं एक्सपैंड करा उस प्रोपोर्शन पे जिस प्रोपोर्शन पे हम ग्रो करें। वेरी नाइस जी। ओके, और क्या बोल रहे थे? हमारी एनबीडी सर करंटली, जिसको हम फील्ड सेल्स रेप मतलब फील्ड सेल्स इंजीनियर्स जितने भी हैं हमारे, दे आर करंटली फोकसिंग प्योरली ऑन ईदर ग्रीनफील्ड, नई प्रोजेक्ट्स जो आ रही हैं, नया मार्केट सेगमेंट, कोई नई एप्लीकेशन है, नए कस्टमर इन एग्जिस्टिंग मार्केट। अगर मेरा एग्जिस्टिंग, सपोज आई सेल सोल्यूशन फॉर टू वन कस्टमर फॉर वन एप्लीकेशन, देन आई ट्राई टू लोकेट कि और कौन से इनके कॉम्पिटिशंस हैं जिनको मैं बेच सकता हूं। सो वो सारा फोकस काफी हद तक आना शुरू हो गया है। 2 दिन महीने में हम डेडिकेटेडली डीप डाइविंग एक्टिविटीज पे रखते हैं, जिसमें हम अपनी सारी स्ट्रेटजीज, हाउ डिड द प्रीवियस मंथ गो एंड हाउ वी वांट टू स्ट्रेटेजाइज फॉर द नेक्स्ट मंथ, जिसमें हम सारी डिस्कशंस करते हैं, एंड दैट सेट्स द टोन, जिससे कि हमारे को और क्लैरिटी मिलती चली जाती है कि हमें वेयर शुड वी फोकस एंड हाउ शुड वी मूव फॉरवर्ड। 2 दिन इन अ मंथ आपकी सिर्फ स्ट्रेटेजी मीटिंग चलती है? यस सर। फुल डे? यस सर। डेडिकेटेड, उनको बोलते सारा बंद करो। डीप डाइविंग एवरीबडी, मतलब till regional heads level are expected to be here in office. वेरी नाइस। इज दिस अ फिजिकल मीटिंग? Yes sir. तो सबको बुला लेते हो, सारे रीजनल हेड को, महीने में 2 दिन? Yes sir. यहीं आओ, यहीं रहो। सेल्स की, हाँ, उससे बहुत बेनिफिट मिला है हमें। वेरी गुड जी। उसमें क्या होता है? उसमें सर एक तो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, अगर एक एरिया में कुछ काम अच्छा हो रहा है, सपोज इफ माय गाय इन अहमदाबाद, गुजरात हैज डन समथिंग वेल, so the person who's in Visakhapatnam or Hyderabad gets to interact with him, understand। और हमने 2 दिन भी इसीलिए रखा है क्योंकि we wanted that evening gelling of them। उससे भी काफी फर्क पड़ता है, वो मोनोटनी जो है वो टूट जाती है। नाउ दे डोंट माइंड पिकिंग अप द फोन एंड कॉलिंग ईच अदर कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू हेल्प मी आउट, या हाउ डिड यू डू इट इन योर स्टेट। पूरा टीम बन गया, वो पूरा टीम बन गया है, तो वो टीम वर्क बहुत स्ट्रांग हो गया उनका आपस में। रात को बैठ के डिनर विनर, दारू वारू सब? बिल्कुल, दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव। अच्छा, दैट इज वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव। डीप डाइव तभी होती है दारू पे ही होती है, दारू के बाद ही शुरू होता है सब। ओके जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। व्हाट एल्स? रियली ग्रेट आइडिया गाइस। फोकस मीटिंग 2 days a week। फोकस सर हमने, हाँ जी, सॉरी बताइए। ऑन प्रोडक्ट मिक्स, वी ब्लैक सर्कल में आइटम्स थी सारी, हमने जीरो कर दी है। आपको एक बार जरा रिपीट करना पड़ेगा, बीच में जैम हो गए थे। ओके, मैं कह रहा हूँ सर, प्रोडक्ट मिक्स जो है हमारा, प्रोडक्ट मिक्स पे हमने काफी काम किया। जितनी भी ब्लैक सर्कल में हमारी आइटम्स आती थी, वी मेड देम जीरो, हमने बेचना ही बंद कर दिया। और मंथली मेरे पास इंडिविजुअल हर इनवॉइस की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, और इंक्रीज फोकस ऑन जीपी मार्जिन, मतलब क्या हर इनवॉइस की प्रॉफिटेबिलिटी अलग से आती है, और फोकस जीपी मार्जिन प्रोडक्ट्स पे अलग से आता है कि इस बार हमने ये हाई जीपी मार्जिन प्रोडक्ट है, इसमें इतनी ग्रोथ करी है, ये लो जीपी मार्जिन प्रोडक्ट है, इसको हमने इतना कम करा है। सो दोनों तरफ से वो अकाउंटेबिलिटी चल रही है। हर इनवॉइस पे जीपी कैलकुलेट कर रही हैं हम, और जो अच्छी जीपी वाली आइटम्स हैं उनको फर्दर एक्सपैंड करी जा रही हैं, तो उस पर फोकस करी जा रही हैं और उसको एक्सपैंड करी जा रही हैं। तो एवरी इनवॉइस उसका जीपी बनता है? हाँ, वो हमने अपने ईआरपी में सिस्टम में ही कैलकुलेट करा लिया, मतलब रिपोर्ट लगवा ली कि एवरी वीक पिछले हफ्ते कितनी इनवॉइसेस कटी हैं, और उनका क्या जीपी, मतलब जीपी नहीं, आई वुड से थ्रूपुट इज व्हाट वी मेजर, उनकी थ्रूपुट क्या थी। थ्रूपुट मतलब? थ्रूपुट मतलब सर बेसिकली टीवीसी अगर हटा दें तो एवरीथिंग एल्स, मतलब इनवॉइस वैल्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू थ्रूपुट। ओके,
तो अब आप ये कह रहे हो कि प्रोडक्ट वाइज आप रिव्यू करते हो कि कौन, और आप ये कह रहे हो कि जो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं थे, बॉटम में थे, लेस प्रॉफिटेबल थे, उनको आपने अपने पूरे मतलब प्रोडक्ट रेंज से हटा दिया। यस सर। इतनी हिम्मत कहां से आई? आपका तो क्लाइंट बोलता है भाई पूरे बास्केट दे मेरे को, देता है तो सब दे वरना मत दे। नहीं नहीं, उसमें सर काफी हद तक तो हमारी ही गलत, मतलब वो हमारे ही पाप थे, वो हमने खुद ही, मतलब वो ये हमारा सेगमेंट में ना, वी आर ऑन अ कमांडिंग पोजीशन राइट नाउ, आई वुड पुट इट दिस वे. So we can dictate terms in the market, or rather we do sometimes dictate terms in the market. And अगर वो प्रोडक्ट हमें नहीं समझ, हमें हमें पहले पता ही नहीं होता था कि उसमें जीपी नहीं है, नहीं तो हम वो काफी टाइम पहले ही बंद कर देते. तो अब हमने कस्टमर्स को उसकी जगह ऑल्टरनेट्स ऑफर करने शुरू कर दिए. ऑल्टरनेट मतलब दूसरे प्रोडक्ट जिसमें जीपी है? जिसमें जीपी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसी प्रोडक्ट को रीब्रांड कर दिया, प्राइसिंग बढ़ा दी, चेंज कर दी. मतलब हाउ, कैसे कैसे हम स्ट्रेटेजीज में बदल सकते हैं. या हमें पता चला कि यार हम ये प्रोडक्ट से एक्स अमाउंट का बेचते हैं मार्केट में, तो अगर हम इसको एक्स प्लस 2x का भी बेचे तो भी इसकी डिमांड है, तो उसकी पूरी रीब्रांडिंग कर दी. हमारी कॉस्टिंग की गलत है. मतलब ऐसी भी सिली मिस्टेक्स कई बार हमने करी भी थी, जो हमें अदरवाइज समझ ही नहीं आती. जब हमने ये एक्सरसाइज करी तो हमें समझ आया कि ये चीजें क्यों कंट्रोल करनी जरूरी है. वेरी नाइस जी, एक्सीलेंट। इसके सिवा एक और रिपोर्ट मैं लेता हूं हमारी इन्वेंट्री टर्न्स की. उसमें भी हमारी प्रोडक्ट लाइन जहां हमारी इन्वेंट्री टर्न्स हाई आ रही हैं, we focus a lot, or we push those lines much harder than slow moving items. ऐसा क्यों? स्लो मूविंग को ज्यादा पुश करना चाहिए, स्लो मूविंग है, फास्ट मूविंग तो दौड़े जा रहा है, वो तो अपने आप चल रहा है। सर वो तो ये है ना, हर बार जब चक्का घूमेगा तो आपको 10 रुपए मिलेंगे. नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ फास्ट मूविंग तो अपने आप बिक रहा है, स्लो मूविंग आपका बिक नहीं रहा, तो उसको ज्यादा पुश करना चाहिए। सब लोग तो ऐसा करते हैं, स्लो मूविंग है उसको पुश कर। नहीं स्लो नहीं, आपको आपको तो आपका प्रॉफिट नंबर देखना है ना, कि आपको प्रॉफिट कैसे ज्यादा मिल रहा है. अगर हमारा, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट लाइन है बूस्टर, हम उसकी ऑन एन एवरेज डिलीवरी देते थे 7 दिनों में. आज मैं उसकी डिलीवरी देता हूं 24 आवर्स में, और मार्केट स्टैंडर्ड है उसकी डिलीवरी का 6 वीक्स. एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज से 5 lakhs. सो वी वर एबल टू ब्रिंग डाउन. आज कस्टमर हमें ऑर्डर देता है, और आज हम बात कर रहे हैं अपनी कंपनी में कि यार ये 24 घंटे है ना, इसको 8 घंटे पे लाना. वाओ। Whereas the market standard is 6 weeks. So we are totally trying to disrupt that market by ensuring, and I am not maintaining inventory. आपका ऑर्डर बनना आपके ऑर्डर पंच होने के बाद ही शुरू होगा. और उसमें आपने ये क्या, आप मतलब बाकी सबको 6 हफ्ते लगते हैं, आप ये 24 घंटे 12 घंटे? तो सर हमने हमने क्या किया है, हमने दो मेन चीजें हैं जो अपने, हमने एक एक कंसेप्ट देखा था, आपने हमसे वीडियो शेयर करे थे ये एली गोल्ड्रैट वाले. उसमें हमने दो चीजें देखी थी, which was where Mr. Goldratt said that you should create a mafia offer in your business. So इसमें हमने कैसे करा काम. Our competition currently, so okay, currently what we are manufacturing, we are the only Indian manufacturer for this product right now. We have about 5 to 6 people who compete with us, and they are all importing this product. कोई चाइना से है, कोई कोरिया से है, कोई जर्मनी से है. They're all imported products. So what our biggest strength was on deliveries. We could not, delivery we knew was something जहाँ पे कि हम सारा मार्केट डिसरप्ट कर सकते हैं. We were negotiating for a very big order where we did a cost benefit analysis for the customer, and we showed him that for every day he is not running pumps, vacuum pumps, he is losing about 2 lakh rupees. Now we told the customer that we will give you delivery say
7 days, 10 days. And our competition was giving in 6 weeks, which is about 42 days. हमने जब बात करी कस्टमर से, हमने ये एक चीज तो हम जब उनसे मिलने गए फाइनल मीटिंग पे, हमने ये पॉइंट सबसे पहले एस्टैब्लिश कर दिया कि 2 लाख रुपए हर रोज का इसका वैक्यूम पंप ना चलाने का नुकसान है. एंड ही ऑल्सो एग्री टू इट. चाहे हमारा यूज करो चाहे कंपटीशन का यूज करो, यू आर सेविंग अबाउट 2 lakhs every day just in utility and solvents. Now because of this, what happened, we told the customer that we'll give you a delivery in 7 to 10 days, whereas from there you are getting in 40-45 days. So this additional delta of 30 days, you're losing additional 60 lakhs. Would you want to lose this? और उन्होंने हमें यही कहा कि यार ये तो सब कहते हैं ऑर्डर लेने वक्त की सर हम डिलीवरी जल्दी दे देंगे, जब ऑर्डर चला जाता है, एडवांस चला जाता है, उसके बाद हर बहाना शुरू हो जाता है. We said no problems, just to instill confidence in you. We will give you. So internally हमने सारी चीजें क्लियर करी. हमारी डेट निकल के आई, हम 7th डे पे डिस्पैच कर सकते हैं. हमने एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके 15 डेज का, और 15 डेज पे हमने इनको क्लियरली कहा कि इफ वी आर एबल टू डिस्पैच विद इन 15 डेज, if we are not able to dispatch within 15 days, we'll give you 30% off on the invoice value. Now, internally, heart and heart, we were very sure कि हम 7वें दिन ही डिस्पैच कर देंगे, हमें 15वें दिन तक वेट करने की भी जरूरत नहीं है. नहीं तो हम 30%, मतलब 2 करोड़ का ऑर्डर है, 60 लाख रुपए मैंने कहा मैं छोड़ने को तैयार हूं अगर मैं डिलीवरी नहीं दे सकता. Now, if he goes with the same term and condition to the competition, और मैंने साथ उसको डेटा भी दिखा दिया कि भाई if you are importing, then you will not get delivery. He is committing 45 days, but the past track record is that he is delivering in 70 days, or import shipments are getting delayed and you'll be getting in 70 days. So here I am committing 15 days and there you are getting 70. मतलब इट वॉज अ नो ब्रेनर, नो डिस्काउंट, नो नथिंग. हाथों हाथ एडवांस का चेक काटा उन्होंने, भाई तुम 7 दिन 10 दिन जितनी जल्दी डिलीवरी दे सकते हो देके खत्म करो. So that is one that we've now created for ourselves, one of the mafia offers that we've created for ourselves. The other was, हमारे लाइन में एक कोटिंग की प्रॉब्लम आती है मटेरियल की कोई, इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम, कोटिंग उतर जाती है. We did our analysis, we created a new product. On an average, standard clauses 12 weeks from commissioning, or 12 months from commissioning, or 18 months from date of dispatch, whichever is early. We said इसमें कैसे disruption कर सकते हैं. हमने कुछ पीछे बैकएंड पे एनालिसिस करे, ट्रायल्स करे, थोड़ी सी आगे पीछे करा. We became very confident that ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, हमारी कोटिंग 5 सालों तक नहीं उतरेगी इसमें. Now a standard company, और कोटिंग की recost of कोटिंग is roughly 30-35% of the equipment cost. Standard product, and people are living with the fact कि यार ये तो consumable है, ये तो बदलना ही पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा. हमने उसको पुश करने के लिए मार्केट में हमने डिसाइड करा कि हमें डिसरप्शन लानी है, हमें एक माफिया ऑफर लाना है. हमने कहा हम कोटिंग में मार्केट में एवरेज कंपटीशन 1 year दे रहा है, हम देंगे 3 years, एंड वी स्टार्टेड पुशिंग 3 years. नाउ इफ 30% of your cost of the machine is just coating cost, and your coating typically comes out in 1.5-2 years, इसका मतलब 30% तो आपका कंपटीशन ले ही लेगा इक्विपमेंट कॉस्ट का अगले 3 सालों में. हमने अपनी प्राइस, हमने ये वारंटी दी मार्केट में, और अपनी प्राइस 25% बढ़ा दी. यही सब बढ़ा दी, क्योंकि हमें पता था, हम सबको यही कैलकुलेशन समझानी शुरू कर दी कि सर, और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से आप चेक कर लो अपने. आई थिंक प्रोबेबली आउट ऑफ 100 इफ यू विल आस्क मी,
one or two cases would be there where we've lost an order. Otherwise, people are ready to pay us that delta of 25% over a German machine because I am able to offer them a solution which nobody else is being able to offer them. And मैंने किया कुछ नहीं है, मेरा अंदर थोड़ी सी R&D हुई और 3-year वारंटी ऑन पेपर, और मेरे पास अगर पिछले, और it's been almost a year now since we've been doing that, we've received one case of failure. So my investment versus the return and the confidence, more than that, the confidence the customer has is much higher. Wow. So just work with me on this. तो आप जो कह रहे हो कि ये जो आपने क्रेडिट बंद किया और डिस्काउंट्स बंद किए, this was because you created some value that you were earlier not giving to the customer. Yes, sir. तो पहले आपको क्रेडिट और डिस्काउंट देना पड़ता था. Yes. इसी मार्केट में आपको देना पड़ता था क्योंकि मार्केट कंपेटिटिव थी. Yes. मगर क्योंकि आपने वैल्यू क्रिएट कर ली, अब प्राइस इज नो लॉन्गर अ चैलेंज. Yes. अब हम इनफैक्ट कंपटीशन से 15% मिनिमम महंगी होती हैं. वाओ. और डू यू थिंक दिस इज वैलिड फॉर मोस्ट पीपल, और ये आपका ही कोई एक्सेप्शनल केस है? नहीं, आई थिंक इट्स, सर ये तो दिस इज, मतलब अपनी वैल्यू स्टेटमेंट, जैसे आपको अपने प्रोडक्ट में, हमें पहले खुद ही नहीं पता होता था. वी डिडंट नो दैट व्हाट वी आर सेविंग फॉर द कस्टमर. वी वर ऑलवेज फोकस्ड ऑन सेलिंग आवर फीचर्स. वी नेवर फोकस्ड, the day we changed our approach from selling our features to seeing what is he actually benefiting, the whole thought process changed. और पहले language, the way we speak to the customer is totally different. पहले वो सिर्फ आपसे प्राइस की ही बात करता था कि पहले क्या? पहले वो हमारे से प्राइस की बात, डिलीवरी, प्राइस, डिस्काउंट, 3 बातें होती थी हमारे सेल्स इंजीनियर की उससे. आपकी भी ऐसी होती थी? सबकी सर. हमें खुद ही नहीं पता होता था. बहुत ज्यादा पूछ लेगा वो तो, वील ओपन अप अ प्रेजेंटेशन एंड वील से ये सर हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स हैं. तो आप ये कह रहे हो कि क्योंकि आप लोग फीचर खेल रहे थे और कोई और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं था, तो आपको डिस्काउंट देना पड़ता था, क्रेडिट देना पड़ता था, और मतलब कस्टमर के पीछे भाग के उससे मिलना पड़ता था. अब वैल्यू, क्योंकि आपने वैल्यू क्रिएट कर लिया, अब ये सब चीजें गायब हो गई. और प्रोडक्ट का मतलब आप 15% मार्जिन बढ़ा के बैठे हो वही मार्केट में, जहां 1 साल पहले आपको कस्टमर के पीछे पड़ के वो जो डिस्काउंट मांगता था उसके हिसाब से वो दिखाता होगा आपको, ये मेरे को इतने का मिल रहा है, तू कितने का देगा, ऐसा होता था. बिल्कुल. और वही उसी में लटकते रहते थे. बिल्कुल. ओके, एक्सीलेंट. एंड यू थिंक दिस इज वैलिड फॉर एवरीबडी एल्स? अगर वो दिमाग लगा ले इसमें, अभी कोर्स में हम लोग लगाएंगे, वैलिड करेंगे, मतलब आपको यूएसपी, गारंटी, वैल्यू प्रोपोजिशन. आज की तारीख में सर, जब तक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शीट हमारी एक पर्टिकुलर ऑर्डर वैल्यू से, अगर 10 लाख से ऊपर का ऑर्डर है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बिना मेरा सेल्स इंजीनियर मेरे कस्टमर के पास जाएगा ही. तो आप अपने कस्टमर की पूरी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके जाते हैं उसके पास? बिल्कुल. उसके कमरे में घुसने से पहले हमें पता होता है कि हम उसके साल में कितने पैसे बचा के दे सकते हैं. वेरी नाइस. और ये सब कर सकते हैं अगर दिमाग लगाएं. हेलो ध्रुव, मैं कह रहा हूँ अब अपने आपके कोई स्पेसिफिक, आपके यहाँ ऐसा कोई स्पेसिफिक है कि सिर्फ आप ही कर सकते हो, या नहीं, नॉट एट ऑल. बाकी सब इंडस्ट्रीज में भी ये किया जा सकता है? एब्सोल्युटली, एवरी इंडस्ट्री. आई थिंक जब अगर नहीं करोगे तो यू आर सेलिंग, मतलब द इजीएस्ट इंडिकेटर इज, अगर आप डिस्काउंट और क्रेडिट बेच रहे हो तो फिर आप वैल्यू नहीं दे रहे. वेरी नाइस. ओके जी, आप कुछ और बोल रहे थे? हमारी सर एक और जो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, जिसने मेरी ये, जैसे मैंने कहा कि प्योरली बाय ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हमने अपना प्रॉफिट इंक्रीज करा. हमारा पहले ऑफर टू ऑर्डर साइकिल होती थी 68 डेज की. इसका मतलब मैंने आज ऑफर दिया है, ऑन एन एवरेज उस ऑफर के अगेन 68 डेज बाद मेरे पास ऑर्डर आएगा, जितनी भी कन्वर्जन रेशियो है. सेल्स लीड टाइम.
sales lead time. So this is sales lead time या offer to order. मतलब अभी मेरा माल dispatch नहीं हुआ है, बस order आया है. हाँ. 68 days. Today it has come down to 32 days. Wow. Similarly, उसका impact क्या है? Sir, उसका impact क्या है? उसका impact हमारी pipeline में हम सर पूरी साइकिल जल्दी चलनी शुरू हो गई ना. मतलब पूरी एफिशिएंसी, अगर मैं एक ट्रांजैक्शन करता हूं उस पे 10% कमाई है, 25%, 20% कमाई है. इफ आई इंक्रीज माय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, I am automatically gaining on with the same fixed cost. I am able to earn more profits. Very nice. Turning faster हो गई हमारी. Similarly, order to dispatch cycle हमारी थी 85 days. इसका मतलब order आने के approximately 85 दिनों बाद हम material dispatch करते थे. Which today, on an average, this includes everything. So I have orders which are specific project orders also, which are government orders which take 3-4 months. But on an average today, that 85 days has come down to 28 days. 85 से 28 आ गया. 85 से 28 आ गया. उसका क्या इम्पैक्ट है? थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ गया सर. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस. तो टोटल साइकिल जो हमारी 153 डेज की थी, वो 153 डेज से आज हम 32 + 28 रफली 60 डेज पे आ गए. फ्रॉम 153 टू, एंड नाउ वी स्टार्टेड मॉनिटरिंग दिस ऑन अ मंथली बेसिस. एंड नाउ आवर टारगेट इज 32 डेज को इस साल हम चाहते हैं 25 दिनों पे लेके जाना. मतलब दिस इज एन एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच इज नॉट टोटली इन माय कंट्रोल, which is my customer, because he has to take the decision. But we are trying to increase our value offerings to such an extent कि वो हम उसकी decision को भी expedite कर दें. Very nice. What else? I think I had written down 12 points, sir. I have covered one point which I got a lot of help doing the digital marketing course as well. I did both the courses together. आपको पता है सर, मैंने आपसे कॉन कॉल पे मनोज सर के साथ बात करी थी कि मैं दोनों कोर्सेज करना चाहता हूं, क्योंकि मैं 6 महीने वेट नहीं करना चाहता अगले कोर्स के लिए. तो जो मेरे ख्याल से हमने अपनी पोजिशनिंग स्टेटमेंट चेंज करी है, जो नंबर्स है, जैसे आज आई एम वेरी प्राउड, ये पहले भी करते थे हम, बट टुडे if I am introducing myself, I'll have my position statement, and I'll have a line which says that we are the only Indian dry screw vacuum pump manufacturer. So as soon as that line comes in, it gives a lot of peace to my customer कि यार जो मैं equipment खरीद रहा हूँ उसकी आफ्टर सेल सर्विस और बाकी सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही है. इट्स नॉट बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड. हमारी अपनी टीम मेंबर्स का इस पोजीशन स्टेटमेंट से, व्हेन दे अंडरस्टूड दैट वी सोल्ड दीज मेनी पंप्स, वी आर प्रेजेंट इन दीज मेनी कंट्रीज, वी हैव सेव्ड आवर कस्टमर्स विद मोर देन 5,000+ crores of profit, their own conviction changed a lot. उनको अपने मतलब जैसे कहते हैं अपने अंदर ही रिस्पेक्ट बहुत चेंज हो गई. आज कस्टमर हमें ये नहीं, आज पहले हमें कस्टमर कहता था कि यार वो तो इम्पोर्टेड है, तो शायद दूसरा तरीका होता था. आज हमें कस्टमर कहता है वो इम्पोर्टेड है, हमारा सेल्स वाला उसके ऊपर चढ़ जाता है, सर इम्पोर्टेड है तभी तो ये 10 प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें. और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकी कस्टमर के टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं जो कह रहे हैं. तो वो सारी चीजें हमने अपने सिस्टम्स में लगा ली है डिजिटल मार्केटिंग से, एंड दैट इज आल्सो हेल्पिंग अस अ लॉट. Very nice. What else would you like to talk to everybody about? So now I am making one of the biggest sales in my life, which you are aware of. Okay, so let that be now. We'll not talk about that. That's a separate story. Okay, great, excellent. So अब आप ये कह रहे हो कि आपका business and आपका future projections क्या है?
इस साल कितनी हम what is the growth that we are getting into the business? Yes. So this year, sir, we will be as a whole company, we will be growing by about the vertical that I handle will be growing by about 57-58% in top line and about 100% in bottom line. तो 400% It would be the third continuous year that we'll be growing by 100%. वेरी नाइस, वेरी नाइस। और 400% जो आपने बोला था वो तो सर हमने फ्रॉम 2009 जब से मैंने बीएमपी प्रोग्राम किया है से पिछले साल तक FY 21-22 तक हमने ग्रोथ अचीव करी है, मतलब दैट इज ऑलरेडी क्लॉक्ड। ओके, और अब वो 400% के ऊपर उसको भी मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो शायद 800% हो जाएगी ग्रोथ अब मेरी। वाओ, बेस ईयर से मैं अगर पकड़ूंगा तो माय प्रॉफिट्स वुड हैव ग्रोन बाय 800%, ऑल थैंक्स टू यू। वेरी नाइस जी। और एएसपी की वजह से कितना ग्रो किया सर? इसमें से अबाउट मैक्सिमम ग्रोथ तो हमारी एएसपी की वजह से ही आई है, क्योंकि पहले साल तो कोविड था तो उसमें हमारा काफी मतलब देयर वाज नथिंग मच दैट वाज डन। Our top line grew, but our bottom line that year didn't grow too much. Next year जिस साल हमने ASP किया था, अपनी पोजीशनिंग करी थी, उस साल हमें काफी फर्क पड़ा है। मतलब उस साल मैं कहूंगा मेरी रिकंडीशनिंग बहुत अच्छी हुई है। वेरी नाइस। हम खुद घबरा जाते थे, हम कहते थे ऑर्डर यार हर हालत में ऑर्डर लेना, डिस्काउंट देके ऑर्डर। But then we decided nothing doing, we'll not be following this path. We will not be reducing our prices. We will be doing business on our terms. And probably that has helped us better. वेरी नाइस। सो अब आपका सेल्स भी, आप कह रहे हो सेल्स में अब आपको कितना टाइम लगता है? 2 दिन, हफ्ते में, महीने में, महीने में? जो मेरे डीप डाइव डेज होते हैं सर, मैं उन दोनों दिन सेल्स के लिए पूरी तरह ब्लॉक करके रखता हूँ। मैं और कुछ नहीं काम करता हूँ दोनों दिनों। इवन इफ आई एम जस्ट सिटिंग देयर लिसनिंग टू पीपल, आई लाइक डूइंग दैट बिकॉज दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ आइडियाज। सो महीने में 2 दिन करके दिस इज द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट यू आर अचीविंग नाउ विद ऑल ऑफ द सिस्टम्स इन एएसपी। सेल से आप पूरा मतलब फारिग हो गए हो। बिल्कुल सर। That's how you're now doing the biggest sale of your life. Or Yeah. you're working on Because I could focus, I could see that opportunity that it's there, so we could grasp it. Wow, wonderful ji, wonderful, awesome, मजे आ गए जी, मजे आ गए। Any word of advice to everybody for ASP? No, I think ASP is a brilliant program. It changes whatever BMP was. I think this is 10x of that. There's a lot of deep thought that happens into this. Probably I did ASP and digital together, so I used to get up every day at 4 o'clock in the morning, no matter what. And 3 दिन में ASP का होमवर्क करता था, 3 दिन में उसका डिजिटल का होमवर्क करता था, और बहुत अच्छा डेटा, बहुत अच्छा कंटेंट मैं उस समय अपने लिए बना सका, जो कि आज भी हमें रिजल्ट्स दे रहा है। Very nice, excellent, excellent, very good ji, very good, awesome. So thank you so much, Dhruv. Thanks for joining us. Today was a very tight day for you, I know that. So I acknowledge you for, even though it was such a tight day, you took out time and came and joined us. And ladies and gentlemen, can we all unmute ourselves and thank Dhruv for the insights that he's Thank you. Thank you, Dhruv ji. Thank you, Dhruv ji. Thank you, Dhruv ji. Thanks a lot, Mr. Dhruv. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dhruv. Thank you much.